Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Here Engineer Hari. बांग्लादेश क्राइसिस और इंडियन कंपनीज है जो कि एक्सपोर्ट करती है यहाँ से भारत से बाहर के देशों पर, या जिनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे पकड़ हैं, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ रही है इस बांग्लादेश क्राइसिस से इस वीडियो में देखने वाले हैं. चेक विच इंडियन कंपनीज हैव बीन अफेक्टेड रिसेंटली पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश ट्रैगर्ड बाय द वायलेंट प्रोटेस्ट एंड ousting of Prime Minister Sheikh Hasina has raised concern about its impact on the Indian business. शेख हसीना क्योंकि 2009 में ऑफिस में आई थी, एंड बांग्लादेश हैज़ बीन ए की एलाई फॉर इंडिया एंड हर डिपार्चर फ्रॉम बांग्लादेश is a poised for risks to trade and economic stability in this region. The turmoil in the Bangladesh has affected both the textile industries and many other industries in Bangladesh, which has many connections with the world and India. क्योंकि आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश की जो कंपनियां जो है, स्पेशली दोज विच सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इन द मार्केट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्रेजेंस इन द कंट्री हैज़ इम्पैक्टेड ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक crisis in the Bangladesh, as well as export from textile materials, apparels from Bangladesh to other countries. The impact was evident in the stock market as shares of Indian firms which ties with the Bangladesh faced decline. The turmoil of Bangladesh has already affected several Indian companies, especially those with significant operation or market presence in the country. The impact was evident in the stocks market as there are many shares which depend on the Bangladesh textile industry are facing decline. And also the some industry which I am explaining right now some micro industries हुआ, Saffola edible oil companies, its share has been dropped more than 4% in 1 or 2 days. Bangladesh contribute about 11 to 12% of the company's revenue, and ongoing crisis could disrupt more for the sale growth of these Saffola industries, Marico and other textile industry or supply chain which are connected with the Bangladesh. Like Pearl Global Industry, this company which gets roughly 25% of the revenue from Bangladesh reported a decline in the shares of over 3 to 5% in few days. Its facility in Bangladesh are temporarily shut down due to curfew and imposed unrest in the Bangladesh. Several such industries and companies which are present in the Bangladesh are feeling hit and strain. These companies, Wires Crop Science, Godrej Consumers, Britannia, Vikas Life Care, Dabur, Asian Paint, Pidilite, Jubilant Foodworks, Bharat Auto, Jubilant Foodworks, Bharat Auto, Hero Motor Corps, Tata Motor. These are the sub companies which are may be affected due to unrest in the Bangladesh. क्योंकि इनके कई सारी फैक्ट्रीज बांग्लादेश में है जहाँ से वो बाहर की ओर एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस इंडिया में भी वहाँ सामान लाते हैं ड्यू टू इकोनॉमी एंड चीप लेबर अवेलेबल इन द बांग्लादेश. तो इस अनरेस्ट के कारण ये कंपनियों के स्टॉक्स में 5 से 6% तक गिरावट देखी गई 2-3 दिन के अंदर में. और फर्दर अगर इस तरह से बांग्लादेश की अनरेस्ट जारी रही तो इनके जो सेल्स वॉल्यूम है एंड प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ने की काफ़ी आसार है. आपदा में अवसर तलाशती हुई इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश से मची उथल पुथल से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दिन आगे की ओर अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के गहरे राजनीतिक संकट और हिंसा में फंसा है. प्रधानमंत्री शेख हसीना देश से छोड़कर जा चुकी है और इंडिया में वो अभी शरण ली हुई है. फर्दर अमेरिका ने वीज़ा रद्द कर दिया है, प्लस इंग्लैंड भी वीज़ा रद्द करने की सोच रहा है. तो इस तरह से कई इशू सामने खड़े दिखते हैं. इस कारण से डिस्टर्बेंस और जारी रखने की उम्मीद है. और देश की कमान अभी सेना के हाथ में चली गई है बांग्लादेश की. पिछले कुछ महीने में बांग्लादेश में हो रही हिंसा से वहाँ का व्यापार लगभग ठप सा हो गया है. बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक देश है, आपको जानना चाहिए. वह हर महीने लगभग 3.5 से लेकर के $4 बिलियन मूल्य के परिधान को, जो अपैरल होते हैं, कॉटन शर्ट्स होते हैं, लेडीज़ एंड अदर तरह तरह के क्लोथ्स होते हैं, बाहर की ओर वो एक्सपोर्ट करते हैं. बांग्लादेश में मची उथल पुथल से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के दिन फिर सकते हैं, क्योंकि निर्यात का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट हो सकता है और भारत का हर महीने 300 से $400 मिलियन का अतिरिक्त ऑर्डर मिल सकता है, जिसके लिए ऑलरेडी
इंटरनेशनल आर्म से इनको इंक्वायरी आना शुरू हो गया है। ये चिंता का विषय है कि लंबे समय से इस तरह की अगर स्थिति रही तो जो इंडिया से यार्न की जो निर्यात करते हैं बांग्लादेश को, उसको भी काफ़ी हेवी लॉसेस होने के चांसेस है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी यार्न निर्यात का सबसे बड़ा ग्राहक केंद्र है फॉर इंडिया। आप कुछ स्टॉक्स मार्केट जिससे बड़े ऑर्डर मिलने के चांसेस है, वो है ट्राइडेंट। यस्टरडे 37 रुपये 70 पैसे पर ये 2 रुपये 95 पैसे बढ़त के साथ बंद हुई। इसकी हाई अगर देखें तो 52 रुपये 90 पैसे है और लो है 31.8 52 वीक की है। उसी तरह का वर्धमान टेक्सटाइल को देखेंगे तो 519 रुपये पर यस्टरडे 3.5% बढ़ा हुआ था और इसकी जो 52 वीक हाई है 592 और 52 लो है 334। अरविंद मिल का अगर देखें, जो कि एक दिग्गज टेक्सटाइल कंपनी है, इंडिया की, मैन्युफैक्चर करती है, इसके स्टॉक्स कल 386 रुपये बढ़े हुए थे 4% पर और आज भी 6% पर बढ़ी हुई है टुडे 7 अगस्त को। उसी तरह अगर हाई अगर देखें अरविंद मिल की तो ये है 420 है और इसकी लो है 137 52 वीक। यदि नितिन स्पिनर देखें तो 436 पर यस्टरडे 6% बढ़ा हुआ था। इसकी 52 वीक हाई है 458 एंड 52 वीक लो है 234। अगर RSMW देखें, ये भी एक अच्छी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन फाइबर यार्न वगैरह करती है। इसकी जो है 248 पर 7% कल बढ़ा हुआ था यस्टरडे 6 अगस्त को और इसकी अगर हाई देखें तो 270 है 52 वीक हाई और लो है 159। तो ये 52 हाई को क्रॉस कर चुकी है। अगर अंबिका कॉटन देखें तो ये भी एक कॉटन मिल है जो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जानी जाती है। इसकी 1997 पर ये कल 3% बढ़ा हुआ था और इसकी अगर 52 वीक देखें तो 2198 लो है 1386। अगर देखें सतलज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी एक आयरन बनाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं टेक्सटाइल की, एक अच्छी कंपनी है टेक्सटाइल की। तो उसमें 65 रुपये 60 पैसे पर 4.51% यस्टरडे बनाया हुआ था। इसकी 52 वीक हाई है 73 रुपीज़ एंड लो है 44। अस्मा लिमिटेड के देखें तो 42 रुपये पर यह 4% बढ़ा हुआ था। अस्मा लिमिटेड इज ए बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल एंड ऑल्सो इन रियल एस्टेट। तो इसकी अच्छा ग्रोथ देखी गई है पिछले क्वार्टर में। तो इसकी जो आपकी देखेंगे तो इसका मेन की बिजनेस तो डेनिम फैब्रिक्स है एंड रेडीमेड गारमेंट्स। तो 6% का बढ़ा हुआ था। इसका 52 वीक का अगर हाई देखें तो 52 रुपीज़ है एंड लो है 12 रुपीज़। उसी तरह अगर RB डेनिम को अगर देखें, क्योंकि ये लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन इन 2010, R&B डेनिम लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल क्वालिटी डेनिम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एंड इन इंडिया, एक्सपोर्ट भी करता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को। तो ये आपकी 6% बढ़त ली हुई थी कल 74 रुपये पर और इसकी अगर हाई देखें 52 वीक की तो 86 रुपीज़ है और लो है 28 रुपीज़। उसी तरह अगर प्रीकोड देखें, क्योंकि ये कंपनी 1962 में इनकॉर्पोरेट की गई थी, ये भी यार्न और टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बड़ी कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप तो है 616 करोड़ है, बट स्मॉल कंपनी में आ रही है और इसकी हाई 52 वीक 558 है और लो है 157। अगर आप कुछ इंडियन टॉप एक्सपोर्टर को अगर देखें गारमेंट के क्षेत्र में जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस है फ्रॉम इंडिया, तो इसमें KPR मिल्स है। ये आप 14% हाई बनाई थी 946 पर और इसकी जो अगर 52 वीक देखें हाई तो 970 है और लो है 621 KPR मिल, लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स। तो इसकी 14% की उछाल देखी गई थी KPR मिल में। उसी तरह गोकुल दास एक्सपोर्ट कर देखें तो ये इंडिया की सबसे बहुत बड़ी कंपनी है जो डिज़ाइन भी करती है, टेक्सटाइल की, अपैरल की, मैन्युफैक्चर भी करती है, प्लस एक्सपोर्ट भी करती है। तो इसकी स्टॉक जो है 1055 पर 14% बढ़ा हुआ देखा गया यस्टरडे और इसकी अगर हाई देखें तो 1095 है, लो है 480। इस तरह से मैंने कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस दी विच आर अफेक्टेड ड्यू टू बांग्लादेश एंड बेनिफिटेड ड्यू टू बांग्लादेश। कोई भी स्टॉक लेने के पहले आप खुद का रिसर्च करें, देन इन्वेस्ट इट। टिल देन हम दूसरे वीडियो में कोई अपडेट होगा तो हम तुरंत ही मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद। यदि अपने चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डालिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए।